Good evening to everybody. In the last lecture, we started the topic on information literacy, and in which we saw the many topics, and we also try to understand what is meaning by the information literacy. Okay, so first of all, we should understand what is meaning by the literacy. Literacy is consider many point of view according to the context of each and every field. It is considered as its meaning. Okay, if we are consider in the field regarding the education, then when we able to write and read the text, and we will get the knowledge in which subject we are going to do degree or career, that is called the literacy. Okay, so in this way, literacy means awareness in any subject. So there are considered many two education literacy. There are many types of literacy, but here we are going to talk about two literacy: information literacy. Okay, so basically we are going to talk on two subject. First one, education literacy, and second one, information literacy. Okay, so there are many literacy like technology literacy, computer literacy, then internet literacy. Okay, but here we are going to talk only on two literacy, because if we understand the meaning of information literacy, then it is necessary to discuss over that what is meant by the education literacy. Okay, so in this way, comparative way, we try to understand the meaning of literacy. Okay, when we are able to write and read the text, that is called the literacy. Okay, and here we can explain that when we are able to find, search, locate, the information. Okay, that is called the information literacy. Means when we get the knowledge about the information, that is called the information literacy. When we aware about the information knowledge, that is called the information literacy. And when we about aware about our education, our reading purpose, our writing, then it is called the education literacy. Okay, so in this way there are many types like internet literacy. Literacy means when we command over that. Okay, when we aware about that, when we get the knowledge about that. Okay, we have knowledge about that.
when we expert in that. So in the sense there are many contexts, we can take the many meanings of literacy. Okay, तो लिटरेसी का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ लिया जाता है, जैसे कि अवेयरनेस, कमांड, एक्सपर्टनेस, ओके, ज्ञान, अलग अलग मीनिंग से हम इस अर्थ का यूज कर सकते हैं। ओके, तो एजुकेशन लिटरेसी यानी कि एजुकेशन का ज्ञान होना, यानी कि जब हम एजुकेशन लेते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, फिर उसमें ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री आता है, तो ये किस पर्पस से लेते हैं? प्राइमरी पर्पस तो हमारा एजुकेशन लेने का होता है कि हमें पढ़ना लिखना आए। ओके, फिर बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं हायर एजुकेशन लेने के लिए, तब हम उसमें नॉलेज प्राप्त कर कर हम उसमें अपना करियर सेट करना चाहते हैं। तो हर लेवल पर हमारा उद्देश्य चेंज हो जाता है, ध्येय चेंज हो जाता है। तो इस तरह से एजुकेशन का पर्पज़ भले ही ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन ज्ञान प्राप्त कर कर उसमें करियर बनाना भी होता है, और करियर बनाकर उसमें सेट होना भी होता है। ओके, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग पर्पज़ होता है। तो एजुकेशन प्राइमरी जो पर्पज़ होता है जब हम प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन में हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए। यदि प्राइमरी एजुकेशन लेकर भी हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हमारा एजुकेशन व्यर्थ हो सकता है। तो इसीलिए जिस लेवल का जो पर्पज़ है वो हमें साध्य करना होता है। ओके, लेकिन जब आप 12 पूरी कर लेते हो, हायर एजुकेशन लेते हो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का, तब आपको आपका करियर करना होता है। आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो ये एजुकेशन के माध्यम से संभव होता है। लेकिन सभी प्रकार का जो एजुकेशन है आपका, वह किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंड है, ये आपको यहाँ पर देखना जरूरी होता है। तो when we are able to write and read the text, okay, तो उसी तरह से इंफॉर्मेशन लिटरेसी का भी एक अर्थ होता है। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी कि क्या? when we get the knowledge about the information, when we expert in the information। ओके, तो लाइब्रेरी साइंस में जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या जो रिसर्च करते हैं, उन सभी प्रकार के लोगों को हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल, एलाइस प्रोफेशनल्स, ऐसा हम बोलते हैं। जो एलाइस प्रोफेशनल होते हैं वे इंफॉर्मेशन लिटरेसी में एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है इंफॉर्मेशन का महत्व पता होता है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट ही है कि इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होती है, ऑपरेट होती है और डिस्ट्रॉय होती है, यूटिलाइज होती है। ओके, इंफॉर्मेशन के अलग अलग टाइप्स, मीनिंग, डेफिनेशन, उसका स्वरूप, उसका यूज हम सबको पता होता है। ओके, तो फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी का, भले ही आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन का ज्ञात नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपका इंफॉर्मेशन एज में रहकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होगा मगर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इफ़ यू आर education literate, but if you don't have information literate, then there is no meaning of your education। ऐसी सिचुएशन अभी है, because we are living in the age of information
And if we don't knowledge about the information, then we don't understand how to generate information, how to package repackage information, how to produce the information product, how to use the information, okay, and how to utilize the information, okay. तो यदि आपको मोस्ट सक्सेसफुल बनना है, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन जिन्हें मोस्ट सक्सेसफुल बनना है तो उनको इंफॉर्मेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का नॉलेज होना ज़रूरी है, ओके। तो इस तरह से हमने इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी कि क्या, ये यहाँ पर जानने का प्रयास किया। तो अभी हम देख रहे कि दिस इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एआई। तो एआई और सर्च इंजन जिसे बोलते हैं, इंटरनेट, वेब, वेबसाइट, ओके। तो इसमें इंफॉर्मेशन यूज होती है जनरली, और कीवर्ड्स के आधार पर ये सब चल रहा है। नेट, इंटरनेट, सर्च इंजन, एआई, आप जहाँ देखोगे वहाँ कीवर्ड्स का यूज हो रहा है, ओके। तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, इन सभी टूल का यूज करते हैं। लेकिन जब तक हम सही कमांड नहीं करते, तब तक हमें सही आउटपुट नहीं मिलता है, ओके। तो ये सभी कमांड बेस्ड टूल्स है, एआई, सर्च इंजन, इंटरनेट, वेब, वेबसाइट को हम जब कमांड देते हैं, डेटाबेस, ई बुक्स वगैरह, तो कीवर्ड का नॉलेज भी हमें होना ज़रूरी होता है। हाउ टू फाइंड द कीवर्ड एंड हाउ टू प्रिपेयर द कीवर्ड एंड हाउ टू गिव द कमांड टू दिस काइंड ऑफ टूल्स। तो जब तक आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी का नॉलेज नहीं है, आप इंफॉर्मेशन लिटरेट नहीं है, इंटरनेट लिटरेट नहीं है, वेब लिटरेट नहीं है, तब तक आप इस साधनों का यूज नहीं कर सकते। लिटरेसी का मतलब आप सीधे सीधे यहाँ पर देख सकते हो कि ज्ञान होना, एक्सपर्ट होना। केवल ज्ञान होना ही जरूरी नहीं, एक्सपर्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि जब आपको ज्ञान होता है तभी आप एक्सपर्ट हो पाते हो, तभी वो चीज़ें आप कर पाते हो, ओके। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिटरेसी का कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसमें हमको इंफॉर्मेशन लिटरेसी का स्टडी करना है, ओके। तो अलग अलग डेफिनेशन के बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की, और इंफॉर्मेशन लिटरेसी के कुछ स्टैंडर्ड भी यहाँ पर दिए हैं, इस पर भी हम बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी के स्टैंडर्ड यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमें दिया है इंफॉर्मेशन लिटरेट स्टूडेंट डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें नेचर और इंफॉर्मेशन नीड हमें ज्ञात होना जरूरी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं IL मतलब इंफॉर्मेशन लिटरेसी यू कंसिडर। फर्स्ट यहाँ पर दिया है
नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नीड, इसका ज्ञान होना जरूरी होता है पहले स्टैंडर्ड में। सेकंड स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया है, यू कैन राइट डाउन इट। इंफॉर्मेशन लेटर स्टूडेंट एक्सेस नीडेड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, एफिशिएंटली। ओके, ये सेकंड स्टैंडर्ड होता है। थर्ड स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया है, इंफॉर्मेशन लेटर स्टूडेंट इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेस क्रिटिकली and incorporate selected information into his her knowledge based value system. To evaluate information and its sources, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है, whether it is authentic or not authentic, whether it is true or not true, it should be checked, and from where we can get the information, the sources also evaluate. तो जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त की है वो सोर्स भी हमें देखनी चाहिए। इंडिविजुअली और मेंबर ग्रुप use information effectively, complete specific purpose. Okay, use information for specific purpose. तो ये चौथा स्टैंडर्ड होता है। इंफॉर्मेशन हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि हमारी नीड होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन हम फाइंड करने वाले हैं तो उसको इफ़ेक्टिवली फाइंड करना चाहिए, और जब वो इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है तो उसका फर्स्ट इवैल्यूएशन करो, उसके सोर्सेज का इवैल्यूएशन करो, फिर जब हम इवैल्यूएशन होने के बाद उसका यूज करो, और यदि यूज नहीं होता तो फिर फाइंड आउट करने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो उसका यूज और यूटिलाइजेशन भी होना जरूरी, तो फोर्थ स्टैंडर्ड में ये आता है। और फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टूडेंट अंडरस्टूड मेनी of the economical, legal, social issues surrounding the use of information and access use of information ethically and legally. Okay, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करते हो वो यूज इंफॉर्मेशन इथिकली और लीगली। यदि प्राप्त इंफॉर्मेशन का आप गलत इस्तेमाल करते हो, यानी कि इंडिविजुअल सेल्फिशनेस के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, पब्लिक इश्यू जो संबंधी हेतु है उसको हानि पहुंचाने के लिए, यदि आप ऐसा करते हो तो इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग फॉर टू यू एंड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। तो समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए ये दुर्दैवी घटना होती है। तो इसलिए स्टैंडर्ड को महत्व देना चाहिए, इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। तो कितने स्टैंडर्ड है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, ओके, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला जो स्टैंडर्ड है, पहले तो आपकी नीड क्या है, नेचर
इन्फॉर्मेशन का क्या है ये आइडेंटिफाई करो। आपको पता ही नहीं कि किस इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है, सर्च करनी है, तो आप स्टार्ट ही नहीं करोगे सर्च। दूसरी बात, एक्सेस इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली एफिशिएंटली। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप इफेक्टिवली सर्च करो ताकि वो आपको मिल ही जाए, अदरवाइज आप खाली ऊपर ऊपर ढूंढने का प्रयास करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तीसरी बात, टू इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन इट्स सोर्सेज। यदि आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई तो इन्फॉर्मेशन चेक करो whether it is true or not true, whether it is authentic or not authentic, sources भी evaluate करो। तो दोनों का इवैल्यूएशन यहाँ पर होना चाहिए और इवैल्यूएशन के बाद उसका यूज करो फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जिस चीज़ के लिए आप वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते थे उस चीज़ के लिए वो इन्फॉर्मेशन का यूज करो। और यदि उसका आप यूज नहीं करते तो ढूंढने का कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, और फिर यूज कैसे करो, ऑथेंटिक और इलीगली। उसमें कोई इलीगलनेस नहीं होना चाहिए। ओके, यदि आप इलीगल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लीगली करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आपको यदि इंफॉर्मेशन लिटरेसी के स्टैंडर्ड क्या है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड विच आर दे, आपको ऐसा सवाल पूछा गया तो इनमें से 3 ऑप्शन आपको सही दिए जाएंगे, एक रॉन्ग दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि फाइंड आउट ऑड मीनिंग। ओके, ऑड आंसर, 2 बराबर 2 रॉन्ग दिए जाएंगे। ओके, और यू हैव टू टेल फाइंड आउट रॉन्ग और राइट, दोनों में से एक को कहा जाएगा फाइंड आउट करने के लिए। और इसको सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है या कंपाउंड बनाना है, ये प्रश्न के स्वरूप पर डिपेंड रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी के स्टैंडर्ड कितने हैं और कौन से हैं। ओके, और उसमें कौन से स्टेटमेंट आते हैं। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड पर चर्चा की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द मॉडल, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल पर हम चर्चा करते, स्टैंडर्ड के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो इंफॉर्मेशन मॉडल यानी कि क्या, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। मॉडल रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन सीकिंग प्रोसेस। पहले तो मॉडल यानी कि क्या ये देखते हैं। मॉडल यानी कि क्या, इंफॉर्मेशन सीकिंग प्रोसेस, इंफॉर्मेशन ढूंढने का तरीका, प्रोसीजर, मेथड्स। तो इन सभी को क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। एक रोल मॉडल होता है, एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, सर्टन स्टेप उसमें होती है, तो उसको मॉडल कहा जाता है। ओके, और ये मॉडल स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद फाइंड आउट किया जाता है और इस तरीके से आप जाओगे तो आपको निश्चित स्वरूप से वह प्राप्त होगा। ओके, तो मॉडल, रोल मॉडल यानी कि क्या, उसमें मॉडल का रोल होता है, यानी कि थ्योरी का रोल होता है, स्टेप का रोल होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर कौन सी है ये हम देखते हैं। कंप्लीट एन असाइनमेंट फॉर जस्ट एक्सप्लोर समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। द प्रोसेस कैन बी वेरी डायरेक्ट, सिंपल, और इट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स।
तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ मेथड्स जो होती है वह कुछ मेथड जो होती है वह क्या होती है, सिंपल होती है, कोई कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसमें से कौन सी अच्छी है वह हमें चूज करनी है। मॉडल्स वेर डेवलप टू डिफाइन इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड आउटलाइन इंफॉर्मेशन सीकिंग प्रोसेस। तो मॉडल क्यों डिफाइन किए जाते हैं, मॉडल क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, या उसका उपयोग क्या होता है, टू डिफाइन इंफॉर्मेशन लिटरेसी और आउटलाइन इंफॉर्मेशन सीकिंग प्रोसेस। ओके, तो इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि रिसर्च का एक मॉडल होता है और उस मॉडल के हिसाब से हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च का एक यूनिवर्सल, जिसे हम यूनी फॉर्मेलिटी जिसमें होती है, ऐसा एक मॉडल होता है, ऐसे एक रिसर्च डिज़ाइन होता है। तो उसके ज़रिए हम रिसर्च करने का प्रयास करते हैं, और यदि हम उसका यूज करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन डू द रिसर्च। तो हम निश्चित रूप से रिसर्च कर पाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडल का उपयोग क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। There are roadmap for navigating through the information seeking process. Sometimes we take one path, sometimes another. How we find, analyze and use information depend on many things. तो बहुत सारे लोग अलग अलग यूज क्राइटेरिया यूज करते, स्टेप यूज करते हैं। तो हमें उसमें यूनिफॉर्मेलिटी आनी चाहिए, इसलिए मॉडल का रोल इम्पोर्टेंट होता है। मॉडल यानी कि क्या, जिसमें यूनिफॉर्मेलिटी होती है। यदि रिसर्च का कोई मॉडल नहीं होता, हाउ टू डू रिसर्च, कि रिसर्च में हमें सिखाया गया है कि किस तरह से रिसर्च करना है, तो उनके सर्टन स्टेज होते हैं, सर्टन स्टेप होती है, तो उसके ज़रिए हम रिसर्च कर पाते हैं। यदि ये मॉडल नहीं फाइंड आउट किया होता और हमें कहा जाता कि आप रिसर्च करो, तो हर एक कोई अलग अलग अपना क्राइटेरिया यूज करता, अलग अलग मेथड यूज करता, तो इसमें यूनिफॉर्मेलिटी नहीं आती। ओके, so they are like roadmap for navigating through information seeking process, including how we learn, the resource we have available, the task in our hand, and what we may already know about the topic. तो कुछ जो वेल नोन मॉडल्स है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के यहाँ पर दिए हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। Kuhl-Thanu information seeking, Iceberg and Barkovich, the big six skills, Irving's information skill, Pitts and Stripling research process, New South Wales information process, Lodger information literacy model, Faultate information skill model, NetSavvy model, information OEO dialogue model, Sconal 7 pillars model. Okay, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन मॉडल दिए गए हैं, लेकिन हम सभी का स्टडी नहीं करने वाले हैं। आप कर सकते हो सभी का स्टडी, नेट पर जाकर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है इफ़ यू आर सर्च ऑल द मॉडल्स ऑन द इंटरनेट। But here we are going to discuss some important model. First one is Konal 7 pillar information literacy model. Okay,
इट इज़ कॉल्ड कोर मॉडल ऑफ हायर एजुकेशन, इसको स्कोर मॉडल भी कहा जाता है। तो पहले इस मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। तर स्कोनल 7 पिलर इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल यहाँ पर हम देख सकते हैं। दिस मॉडल हैज़ बीन यूज टू बिल्ड द लर्निंग आउटकम्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च स्किल। ओके, स्कोनल मीन्स what we are going to discuss now. Society of College and National University Libraries, it is made for this, updated its original 7 pillars framework in April 2011 to account for the changing terminology and concept surrounding information literacy. तो इसके क्या 7 पिलर है और उसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, उसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, able to identify a personal need for information. Scope identify, पहला जो पिलर है आइडेंटिफाई, एबल टू आइडेंटिफाई पर्सनल नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है फिर, एबल टू आइडेंटिफाई पर्सनल नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन नीड क्या है पहले आइडेंटिफाई करो। दूसरा स्कोप, कैन एक्सेस करंट नॉलेज एंड आइडेंटिफाई गैप, करंट इंफॉर्मेशन क्या है और आइडेंटिफाई गैप आइडेंटिफाई करो। ओके, तीसरा है प्लान, कैन कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटेजी फॉर लोकेटिंग इंफॉर्मेशन डेटा। ओके, और यहाँ पर प्लान यानी कि कैन कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटेजी लोकेटिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो आपको स्ट्रेटेजी डिसाइड करना होगा किस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले हो, कैसे प्राप्त करने वाले हो। गैदर, कैन लोकेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन डेटा दे नीड, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो गैदर करो, एक्सेस करो। फोर्थ में आता है गैदर में। फिफ्थ स्टेप है इवैल्यूएट, जो इंफॉर्मेशन आपने प्राप्त की वो रिव्यू करो। द रिसर्च प्रोसेस कंपेयर एंड इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन एंड डेटा, जो डेटा इंफॉर्मेशन आपने प्राप्त किया वो रिव्यू करो, इवैल्यूएट करो। 6, कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन प्रोफेशनली एंड इथिकली, उसका यूज करो लेकिन इथिकली और प्रोफेशनली यूज करो। और 7 जो है प्रेजेंट, कैन अप्लाई द नॉलेज गेन, प्रेजेंटिंग रिजल्ट देयर रिसर्च, सिंथेसाइज न्यू and old information, data create new knowledge and demanding its varieties way। ओके, तो इस तरह से आप इस 7 स्टेज के जरिए और जो स्कोनल मॉडल है इसके जरिए आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे स्टैंडर्ड बताया, इस स्टैंडर्ड के आधार पर
आप भी एक अपना मॉडल तैयार कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो उसमें। ओके, और यदि आप इस मॉडल के जरिए जाते हैं या इंफॉर्मेशन सीकिंग करते हैं या फाइंडिंग करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी और उसका सही मायने में आप इस्तेमाल कर पाओगे। जब आप रिसर्च करते हो तो ये क्राइटेरिया आपको वहाँ पर यूज करना है। जब आप टॉपिक डिसाइड करते हो, प्रॉब्लम डिसाइड करते हो, रिसर्च टॉपिक डिसाइड करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन की नीड क्या है ये समझ में आता है। आप किस फील्ड में, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट में, किस एरिया में, किस डिसिप्लिन में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, ये आप तय कर पाते हो ऑन योर टॉपिक। ओके, फिर उसके रिगार्डिंग आप वही सोर्सेस सिलेक्ट करते हो, फाइंड आउट करते हो जिसमें आपके टॉपिक के संबंधी इंफॉर्मेशन होती है। ओके, फिर यदि आप इस माध्यम से जाओगे, इस स्टेप से, इस मॉडल से जाओगे, तो आपको निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ओके, और वो इंफॉर्मेशन किस तरह से प्राप्त होती है ये हमने देखा, और इंफॉर्मेशन कैसी प्राप्त करना चाहिए ये भी हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से स्कोनल मॉडल के जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। ओके, और फिर आगे यहाँ पर दिया है सॉस मॉडल। ओके, SOS is a process of users to use in research problem solving and inquiry learning। तो SOS ये जो मेथड है, ये जो मॉडल है, किस फील्ड में इसका यूज किया जाता है ये हमको यहाँ पर देखना है। ओके, तो रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस मेथड का यूज किया जाता है, और इंक्वायरी लर्निंग। This model was initially developed in the year 1999। 1999 में इस मॉडल का डेवलपमेंट किया गया और इन्वेंशन किया गया। देन इट वाज स्लाइटली रिवाइज इन अप्रैल 2009, और उसको 2009 में रिवाइज किया गया। The model given here is an updated version of SOS। This model was created by ट्रेवर बॉन्ड। ट्रेवर बॉन्ड ने ये मॉडल तैयार किया है। This can be depicted as information literacy and inquiry learning and problem solving और research process। तो इस मॉडल का वर्णन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, इंक्वायरी लर्निंग मॉडल कह सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल कह सकते, रिसर्च प्रोसेस मॉडल हम कह सकते। जब आप रिसर्च करते हो तो एक बार जरूर इस मॉडल का आप स्टडी करना। इस मॉडल का उपयोग या मदद आपको हो सकती है। दिस मॉडल इज अ काइंड ऑफ टूल which develop understanding of users, train them to search require information effectively। इस मॉडल की मदद से क्या होता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करता है, हमें ट्रेन करता है रिक्वायर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में। ओके, द फ्रेमवर्क गाइड यूजर्स इन एवरी स्टेप। इस मॉडल की फ्रेमवर्क ऐसी है, हर एक स्टेप पर हमें मदद होती है, यूजर को गाइड होता है। So this is also regards tool for teachers and to guide their student। तो टीचर को, स्टूडेंट को एज ए गाइड का काम करती है, रिसर्चर को। थ्रू दिस द यूजर कैन इफेक्टिवली assess and evaluate the information search process and also become information literate individual। okay,
तो इस तरह से रिसर्च से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें ये मॉडल मदद करता है। ओके, तो यहाँ पर सॉस मॉडल की जो प्रोसेस है, स्टेप है, आप फाइंड आउट कर सकते हो और इसका अभ्यास डिटेल में कर सकते हो। इस मॉडल का उपयोग कहाँ कैसे क्यों करना है ये हमने यहाँ पर देखा। आगे का मॉडल बिग 6। ओके, information literacy model. Big 6 is a process model of information problem solving. It integrates information search and use skill along with technology tool in systematic process to find, use, apply and evaluate information for specific need and task. Specific needs, information need, task और needs के लिए ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। द बिग वॉज डेवलप्ड बाय माइक आइजनबर्ग एंड बॉब बारकोविच एंड इज पॉपुलर अप्रोच टू टीचिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल फॉर स्कूल एंड एची इन द वर्ल्ड। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर और इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये अलग अलग कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन लिटरेसी में अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग मॉडल पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें बिग 6 एक मॉडल है विच वॉज डेवलप्ड बाय द माइक आइजनबर्ग, इन्होंने डेवलप किया है। बॉब बर्कोविच, आपको इस पर सवाल पूछा जाएगा किसने ये मॉडल डेवलप किया। अप्रोच टू टीचिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। हियर इज समरी ऑफ बिग 6 मॉडल, वी कैन सी। तो बिग 6 मॉडल में क्या होता है ये यहाँ पर दिया है स्टेप वाइज। 6 स्टेप इसमें दी जाती है। टास्क डेफिनेशन, डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन नीड। रिसर्च जब आप करते हो तो उसमें सेम प्रोसेस आती है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यदि आप प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो किस एरिया में आपको रिसर्च करना है, किस पर रिसर्च करना है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम ही नहीं तो सॉल्व कैसे होगा, सॉल्यूशन आप कैसे ढूंढोगे और कहाँ ढूंढोगे। ओके, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन को ही आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो किस इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट करना चाहोगे, ये भी एक सवाल है। तो रिसर्च प्रोसेस में जो स्टेप होती है सेम उसी तरह इंफॉर्मेशन लिटरेसी में भी स्टेप आते हैं। व्हाट डज माय टीचर एक्सपेक्ट मी टू डू, डू आई अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आर द क्वेश्चंस आई नीड आंसर, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। ये सवाल जब आप खुद को पूछते हो तब आप अपना टास्क डिफाइन कर पाते हो, अपनी इंफॉर्मेशन नीड या नेचर डिफाइन कर पाते हो। ओके, दूसरी स्टेप यहाँ पर दिए इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रैटेजी। तो आप किस स्ट्रैटेजी का यूज करने वाले हो आफ्टर डिफाइन द इंफॉर्मेशन नीड्स। ओके, आपको पता है अब कि हमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, अब उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान आप यूज करने वाले हैं। ओके, आइडेंटिफाई ऑल रिसोर्सेज, सिलेक्ट द बेस्ट रिसोर्सेज। सभी प्रकार के रिसोर्सेज आपके सामने, टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट, एडॉप्टेड, रिलेवेंट
सोर्सेस आप फाइंड आउट करो, और जो इरेलीवेंट है, लेस इम्पोर्टेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट है, उसको साइड में करो। ओके, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? कुछ सवाल आपको पूछने होंगे। वेयर कैन वी स्टार्ट लुक फॉर इंफॉर्मेशन? हु कैन आई टॉक टू गेट इंफॉर्मेशन? व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्स टू यूज? इस सवाल जब आप खुद को पूछोगे तब आपको सोर्स सिलेक्ट करने में मदद होगी। ओके, थर्ड स्टेप यहाँ पे आता है लोकेशन एंड एक्सेस। यदि हमें पता है सोर्स, पता चल गई कहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त होने वाली है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा। ओके, फाइंड इंफॉर्मेशन इन रिसोर्सेस, लोकेट रिसोर्सेस। तो जहाँ पर ये सोर्सेस अवेलेबल है, जैसे कि रेफरेंस लाइब्रेरी होगी, उधर रेफरेंस सेक्शन होगा, वहाँ पर आपको जाना होगा। वेयर कैन फाइंड दीज रिसोर्सेस? हाउ डू सर्च टू गेट देम? ओके, मैं कैसे उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ? वेयर डू आई फाइंड इंफॉर्मेशन इन द सोर्सेस? ओके, कहाँ से मुझे मिल सकते हैं? तो इन सभी बातों पर आपको चर्चा करनी होगी। तो इस तरह से 3 स्टेप का यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, ओके, उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हो, कहाँ फाइंड आउट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप हम एक उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। रिसर्चर को ये 3 स्टेज में से कैसे जाना होता है? पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन या टास्क डिफाइन करता है। फिर सीकिंग स्ट्रेटेजी, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है तो किस टूल और टेक्निक का यूज करना है। दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप, कहाँ से ये सोर्स हमें प्राप्त होगी। ओके, तीसरी स्टेप। और चौथी स्टेप क्या आती है? यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्राप्त हुई इंफॉर्मेशन का हमें यूज करना होता है। रीड रिव्यू इंफॉर्मेशन, डिसाइड विच पार्ट्स यू वांट यूज एंड विच नॉट यूज। तो जो इंफॉर्मेशन हमने प्राप्त की उसका एवेल्यूशन, रिव्यूज हमें करना होता है, एवेल्यूशन करना होता है। और जो इंफॉर्मेशन हमारे संबंधित है, काम की है, वही आपको सेलेक्ट करना होता है। और जो आपकी काम की नहीं उसे आप छोड़ दे सकते हैं, यानी छोड़ देना है। तो इसके लिए आप खुद को सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डिड आई फाइंड? मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई? विल द इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस आई हैव? जो मुझे सवाल थे उसके आंसर के जवाब ये दे सकती है इंफॉर्मेशन, प्राप्त इंफॉर्मेशन। हाउ डू आई राइट नोट ऑन द इंफॉर्मेशन? इज द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल? सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे। फिफ्थ स्टेप उसमें आती है सिंथेसिस, पुटिंग पजल्स टुगेदर, ऑर्गेनाइज रिसोर्स, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। तो आपको रिसोर्स ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है। हाउ डू आई फिट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर? हाउ डू आई राइट आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट? ओके, तो आपको प्रेजेंट करनी होती है, जैसे कि रिसर्चर इवोल्यूशन, एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस करने के बाद उसका प्रेजेंटेशन करता है। ओके, और प्रेजेंटेशन नहीं किया उसने तो उसके भी समझ में नहीं आता कि इंफॉर्मेशन किस संबंधी है।
तो रीडर के कैसे समझ में आएगी। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट होता है प्राप्त इन्फॉर्मेशन का। और 6 स्टेप इसमें आती है जज इन द प्रोडक्ट, जज इन द प्रोसेस, यानी कि जजमेंट आप लास्ट में देते हो, रिजल्ट कंक्लूजन जो भी हो आप एंड में देते हो। तो रिसर्च में भी सेम ऐसे ही होता है। तो रिसर्च की प्रोसेस हम आपको बताते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम है पहला, दूसरा है रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट करने वाले हो उसका रिव्यू करो। तीसरी डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रेजेंटेशन, ये इसमें आता है। और फिर लास्ट में डेटा रिजल्ट, रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन्स। ओके, तो इस तरह से रिसर्च आगे बढ़ता है और इस मॉडल के जरिए हम रिसर्च कर पाते हैं। ओके, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल्स हमने देखे, स्कॉनल मॉडल और ये जो 6 मॉडल है, बिग 6 मॉडल है, ये मॉडल हमको इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करनी है इसके स्टेप बताते हैं, स्टेज बताते हैं। तो इसका उपयोग आप रिसर्च में कर सकते हो। एग्ज़ाम में तो इसका उपयोग आपको होने ही वाला है यदि आप फोकस करके इस पर ध्यान देते हो, अच्छा स्टडी करते हो, तो निश्चित स्वरूप से आपको इसका ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो इस तरह से इफ़ यू आर गो थ्रू दिस 6 स्टेप and try to find out the information, you will get definitely information. And if you are use this model, big 6 model, for doing research, for collecting the information in your research, then it will definitely help to you. And you can also ask to others to use this model for getting the authentic information. Okay, so for using this model, utilize this model, before that you should learn, you should study this model. If you don't understand, if you don't study this model, then you can't use it. इस मॉडल का आपको स्टडी करना होता है होगा, तभी आप इसका यूज करते हो। यदि आपको ये समझ नहीं आया कि किस तरह से काम करता है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो इस तरह से बिग 6 मॉडल के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, लेक्चर के स्टार्टिंग में लिटरेसी के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने शुरुआत में 2 प्रकार देने का प्रयास किया एज ए कंपेरेटिव स्टडी के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि एजुकेशन लिटरेसी क्या होती है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है। एक कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने दूसरी कंसेप्ट को पहले देखा, फिर जो कंसेप्ट हमें समझनी हो समझने का प्रयास किया। तो इससे हमारी समझ और बढ़ जाती है, हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। ओके, तो जैसे हमने शुरुआत में देखा कि 2 प्रकार बताए, एजुकेशन लिटरेसी अलग है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलग है, लेकिन ऐसे कई प्रकार लिटरेसी की है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अलग अलग लिटरेसी कौन सी है हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहली है digital literacy. Digital literacy is defined by JISC as the capabilities which fit someone for living, learning and working in digital society. So if you are working in the field of digital literacy, then you should understand the meaning of digital literacy. Means you should aware about that, you should knowledge about digital
society digital field, digital technology, that is called the digital literacy. Through the use of their 7 stand model, critical thinking, creativity is applied to wide range interaction we have with and through digital technology. तो लिटरेसी मॉडल स्टैंडर्ड क्रिटिकली स्टडी करने के बाद हमें समझ में आएगा कि डिजिटल लिटरेसी क्या होती है. इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज वन part of the 7 stand of digital literacy. JISC developing digital literacies website give the full definition, model, case studies. The British Computer Society, that is called BCS, have the digital literacy for life programs, which is concerned with the exploring methods of improving 3 keys areas with digital literacy: employability, education and society. तो डिजिटल लिटरेसी को समझने के लिए 3 क्राइटेरिया हमें समझने होते हैं. फ्यूचर लैब प्रोड्यूस द डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस द करिकुलम्स हैंडबुक्स which aim to primarily at the primarily and secondary education sectors. Okay. Then media literacy. तो मीडिया लिटरेसी में द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड यूनेस्को, डिफाइन मीडिया लिटरेसी ऑन देयर डेडिकेटेड वेबसाइट as including the following elements: understanding the role and functions of media in democratic society, understanding the conditions which media can fulfill their function, okay, critically evaluating media contents, engaging with media for self expression and democratic participation. तो मीडिया लिटरेसी मतलब सोशल मीडिया इज डिफरेंट थिंग्स, देन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर मीडिया, ओके. तो अलग अलग एक दूसरे के पार्ट है, उनका फंक्शन भी अलग अलग है. तो ये मीडिया लिटरेसी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया में क्या चलता है उसका इम्पैक्ट हम पर होता है. तो लोकशाही में इम्पोर्टेंट पिलर माना जाता है. और जब हम लोकशाही में, डेमोक्रेसी में जी रहे होते हैं या रह रहे होते हैं, तो हमें इसका ज्ञान होना ज़रूरी होता है. ओके. बहुत सारे लोगों को, वे अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट होते हैं, एजुकेशन में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन मीडिया लिटरेसी न होने के कारण उनको कुछ बातें समझ में नहीं आती, बाहर क्या चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वगैरह वगैरह. तो मीडिया लिटरेसी भी होना ज़रूरी होता है. सो हियर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक. whether it is news media, whether it is electronic media, okay. Then it is called the media literacy. So media is most important pillar in the democracy, and we are the people who are living in the democracy. That's why we should have knowledge about or regarding the media, okay. And when you will get the knowledge regarding the media, then you have, it means you have media literacy, right. जब हमको मीडिया के संबंध में नॉलेज होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें मीडिया लिटरेसी है, मीडिया के बारे में नॉलेज है, ओके. तो सभी चीज़ें इसमें आती है. The critical evaluations and review skill directly linked with information literacy skill set and in wider context. UNESCO offer definition and model media and information literacy. The Office of Communication, Ofcom, has developed a media literacy strategy and will work with stakeholders to focus on the present futures media literacy needs all the members of society. तो ऑफकॉम सोसाइटी जो है, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, तो उन्होंने मीडिया लिटरेसी के बारे में कुछ रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और उन सभी लोगों को वो पढ़ना चाहिए और वहाँ से कुछ चीज़ें मीडिया
लिटरेसी के बारे में सीखना चाहिए। आपको हम डिफाइन मीडिया लिटरेसी एज द एबिलिटी टू एक्सेस, अंडरस्टैंड एंड क्रिएट कम्युनिकेशन इन वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो मीडिया लिटरेसी की डेफिनेशन जो है आपको हमने डिफाइन की है, द एबिलिटी टू एक्सेस, अंडरस्टैंड एंड क्रिएट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम एक्सेस करना, अंडरस्टैंडिंग करना, क्रिएट करना, तो उसे ही हम मीडिया लिटरेसी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि द मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलायंस has developed framework that draws from real life examples provided by sectors representative from the information literacy group। और जो अलग डेफिनेशन है मिला, यानी कि मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलायंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है मीडिया लिटरेसी की, तो उन्होंने भी डेफिनेशन देने का प्रयास किया है। has developed framework that draws from real life example provided by sector representative from the information literacy group। okay, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मीडिया लिटरेसी की डेफिनेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पर देखी है। तो उसके बाद वेब लिटरेसी आती है। वेब लिटरेसी यानी कि वेब यानी वेबसाइट, ओके, एंड डब्ल्यू जो बोलते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो पूरी दुनिया में वेब है, वेबसाइट्स है, इट इज़ कॉल्ड द ग्रुप ऑफ वेबसाइट। तो उसके बारे में भी नॉलेज हमें होना चाहिए। वेब लिटरेसी उसको कहते हैं कि वेबसाइट फाइंड आउट करना, लोकेट करना, उसका एड्रेस वगैरह, वो कैसे बनती है, किस तरह से चलती है, ऑपरेट कैसे होती है, ओके, कहाँ से ऑपरेट होती है, कहाँ पर रखी जाती है। तो इस सभी प्रकार का जो नॉलेज है वेब लिटरेसी में आता है। एज डिफाइंड बाय द मोजिला फाउंडेशन, वेब लिटरेसी इज कंसर्न विद द स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज needed for reading and writing and participating on the web। इसका मतलब जैसे कॉपी कट पेस्ट, ये हमें पता होता है नेट पे, ठीक उसी तरह से रीडिंग, राइटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग ऑन द वेब, इट इज़ कॉल्ड द वेब लिटरेसी। तो वेब पर जब हम जाते हैं तो हमें रीडिंग करना आना चाहिए, राइटिंग करना आना चाहिए और पार्टिसिपेट होना आना चाहिए। ओके, और अदर लेवल पे जाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, ये जब हमको आ जाता है तो हम नेट हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी बात, सर्च, फाइंड आउट, स्ट्रैटेजी, ये सब हमें आता है तो हम कोई भी वेबसाइट इंटरनेट स्पेस से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसका ज्ञान होना, नॉलेज होना, उसको भी हम वेब लिटरेसी कहते हैं। तो मोजिला ने खुद वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, तो खुद डेफिनेशन दी है, वे आप पढ़ सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वेब मोजिला फाउंडेशन हैज़ वेबसाइट डेडिकेट टू स्किल ऑफ वेब लिटरेसी। ओके, तो वेबसाइट डेडिकेट टू स्किल यानी कि वेबसाइट का नॉलेज होना। आपको यहाँ पर वेबसाइट बनाने के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन जो वेबसाइट बनाते हैं और जहाँ से वेबसाइट रन होती है, ऑपरेट होती है, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए और उसको हैंडल करना आना चाहिए। ओके, द स्किल आर डिवाइडेड इनटू 3 स्किल स्टैंड। एक्सप्लोर, रीडिंग द वेब, एक्सप्लोर यानी कि रीडिंग वेब, वेब आपको रीड करना चाहिए। बिल्ड, राइटिंग द वेब यानी आप उस पर लिखना चाहिए, लिखना आना चाहिए उस पर। कनेक्ट, पार्टिसिपेटिंग द वेब। ओके,
यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना, एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट से कनेक्शन वगैरह, इस सभी चीज़ों में आप एक्सपर्ट की होने की अपेक्षा होती है वेब लिटरेसी में, तब आपको वेब लिटरेसी में इंटरेस्ट आता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेब लिटरेसी यानी कि क्या, जब आपको वेब का नॉलेज हो जाता है, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, तब आपको वेब लिटरेसी है, ऐसा कहा जा सकता है। तो फिर उसके बाद डेटा लिटरेसी है। जैसे इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सभी लिटरेसी के प्रकार है अलग अलग, और इंफॉर्मेशन लिटरेसी के ही पार्ट है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हम बोलते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन आता है प्लस टेक्नोलॉजी आता है, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जब हम बोलते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आता है। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब हम बोलते हैं कंसेप्ट आईसीटी, तो उसमें सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, ब्राउजर, सर्च इंजन वगैरह ये सब आता है। ओके, डेटा लिटरेसी इज एबिलिटी टू डिस्कवर, इवैल्यूएट एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। As with information literacy, it is grounded in knowing where to find information, thinking critically about it, and being able to communicate knowledge. Okay. तो आपको ये सभी बातें आना चाहिए। जैसे कि डेटा हम जब फाइंड आउट करते हैं एज ए रिसर्चर, तो हमें पता नहीं होता कि रॉ डेटा कहाँ से प्राप्त करना है और किस टूल और टेक्निक का यूज करना है। तो एज ए रिसर्चर हम उसमें फेल होते हैं और डेटा कलेक्शन हमें नहीं बनता जमता। तो रिसर्च जब आप करते हो, फर्स्ट सेकंड चैप्टर के बाद तीसरा जो चैप्टर होता है डीकैफ जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड डेटा प्रेजेंटेशन, ये 3 स्टेप आती है। तो ये करने के लिए हमें डेटा फाइंड आउट करना पड़ता है, पहले सर्च करना पड़ता है, तो उसकी स्ट्रेटजी हमें पता होनी चाहिए और फिर बाद में ये हमको आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से डेटा के संबंध में नॉलेज जब आपको होता है, तभी आपको डेटा लिटरेसी आ सकती है। Knowing what kinds of data there are, where to find and how to access them. Data comes in many forms, not just numbers. Do you need quantitative, qualitative? ओके, तो डेटा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ओके, सेकेंडरी, नॉन सेकेंडरी, प्राइमरी, data from official sources, government, international organization, micro, small, macro, large. Okay, does it comparable over time and location or group? It is only available from facility data or service archive. Okay, ऐसे बहुत तरीके से हम डेटा फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं और उसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं। ओके, तो इस तरह से आर देयर एक्सेस कंट्रोल्स एंड टर्म्स ऑफ यूज दैट गवर्न हु कैन गेट डेटा एंड व्हाट दे कैन डू विथ इट। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डेटा लिटरेसी यानी कि क्या होता है। ओके, evaluate, this is ability to judge the data are relevant and suitable quality for knowing what something is measured and measurement is appropriate। तो डेटा हमको प्राप्त होने वाला है या जो डेटा हम प्राप्त करते हैं उसको इवैल्यूएट करना जरूरी होता है, whether it is authentic or not authentic, whether it is useful or not useful,
ओके, तभी हम उसका यूज कर पाते हैं। देन प्रेजेंट data sets on their own soon become the overwhelming without ways to summarize data. This can be from knowing suitable test of statistical significance for measuring the significance and strength of relationship in the data and how to interpret them to applying appropriate summary. Okay, तो डेटा इवेल्यूट करने के बाद उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, कलेक्शन और एनालिसिस करने के बाद प्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी हम डेटा का सही मायने में उपयोग कर सकते हैं। ओके, कॉपीराइट लिटरेसी। ओके, जब हमें वेब लिटरेसी होती है, इंटरनेट लिटरेसी होती है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी होती है, डेटा लिटरेसी होती है, लेकिन कॉपीराइट लिटरेसी आपको होगी ही ऐसा नहीं। कॉपीराइट लिटरेसी यानी कि क्या, कॉपीराइट एक्ट के बारे में आपके मन में जो जागृति है, अवेयरनेस है, उसको कॉपीराइट अवेयरनेस कहा जाता है या लिटरेसी कहा जाता है। कॉपीराइट लिटरेसी यानी कि क्या, या अवेयरनेस यानी कि क्या, आप इन सभी मीडिया का जब यूज करते हैं, मीडिया का यूज करते हैं, नेट का, इंटरनेट का, इंफॉर्मेशन का, डेटा का, तब आपसे इस एक्ट का उल्लंघन ना हो, इसके लिए आप सदा अवेयर रहते हैं। और आप तभी अवेयर रहते हैं जब आपको इसके बारे में ज्ञान हो, ज्ञात हो, ओके, या नॉलेज हो या लिटरेसी हो, तभी आप ये नहीं कर पाते हो। यदि नॉलेज ही नहीं, अवेयरनेस नहीं, लिटरेसी नहीं है, कॉपीराइट लिटरेसी नहीं है आपके पास, या नॉलेज नहीं है, तो आप कॉपीराइट एक्ट का भंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की लिटरेसी हमने यहाँ पर देखी। उसमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में जाना, एजुकेशन लिटरेसी क्या है। पहले तो हमने लिटरेसी ये शब्द एजुकेशन के बारे में सुना था, लेकिन अब मॉडर्न युग में हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी सुन रहे हैं, वेब लिटरेसी सुन रहे हैं, डेटा लिटरेसी सुन रहे हैं, और कॉपीराइट लिटरेसी सुन रहे, मीडिया लिटरेसी सुन रहे, और भी कई लिटरेसी के प्रकार है। लेकिन हमें यहाँ पर इन लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए और पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट, यहाँ पर ख़त्म हुआ है। और जो जो टॉपिक हमने यहाँ पर चर्चा की, इसके बारे में चर्चा की, एक बार हम फिर से यहाँ देखते हैं। कॉपीराइट लिटरेसी यानी कि इसके बारे में हमने जाना, डेटा लिटरेसी इसके बारे में जाना, वेब लिटरेसी यानी कि इसके बारे में जाना, मीडिया लिटरेसी इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त की। ओके, और अलग अलग लिटरेसी हमने यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास किया। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले सेकेंड यूनिट में हमने किस पर चर्चा की। तो पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया एंड कमिटीज एंड कमीशन ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में जाना। तो जो 10 टॉपिक्स है इसके बारे में उसकी संबंधी हमने सभी प्रकार की जानकारी यहाँ प्राप्त करने की कोशिश की। तो इस यूनिट पर हम आपको एक असाइनमेंट देते हैं। इस यूनिट में जितने भी कंसेप्ट हमने चर्चा की या उसका स्टडी किया,
उसकी आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। कौन सी कंसेप्ट आपको समझ में आई और कौन सी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आई। जो समझ में आई उसके बारे में आपको लिखना है 2-4 लाइन में अपने ओन इंटरप्रिटेशन से, और जो समझ में नहीं आई वो हमें आप पूछ सकते हैं एज ए क्वेरी करके। ये आपको एक असाइनमेंट ही है, आप सभी कंसेप्ट लिख सकते हो, इस पर स्टडी कर सकते हो और इसके संबंध में जो जो क्वेश्चंस है उसको फाइंड आउट करके आपको वो रिसाइट करना है। रिसाइट करना है यानी कि पढ़ना है, तभी आपको इसके संबंध में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने ये यूनिट पढ़ा सीखा, लेकिन इसमें से कितना पार्ट्स हमें समझ में आया और कितना पार्ट्स हमारे समझ में नहीं आया, ये बात आपको समझ में आ सकती है। और जो जो समझ में आया उससे आपको फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में, और जो समझ में नहीं आया वो आप समझने का प्रयास करने वाले हैं टीचर को पूछ के, तो टीचर डेफिनेटली इस पर आपको गाइडेंस करने वाले हैं। ओके, तो ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम थर्ड यूनिट पे काम करने वाले हैं या थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे ही हमने देखा कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का कितना महत्व होता है हमारे लाइफ में, एज बीइंग प्रोफेशनल ये हमको पता है, लेकिन जो लिटरेट है समाज में, जो अपने एजुकेशन पे गर्व करते हैं कि हम एजुकेटेड है, हमें नॉलेज है, लेकिन वे तो एजुकेशन लिटरेट होते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन लिटरेट होते ही ऐसा नहीं है। तो जब हम उनकी बातें सुनते हैं एज बीइंग प्रोफेशनल ऑफ लाइब्रेरी और एलाइज प्रोफेशनल, तो हमें कभी कभार आश्चर्य होता है कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट के बारे में उन्होंने सुना ही नहीं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो हम ही उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के युग में हमें इंफॉर्मेशन पढ़ना आना चाहिए, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए, इंफॉर्मेशन जनरेट करना आना चाहिए। और एआई तो उसका अभी एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि इंफॉर्मेशन किस तरह से प्राप्त की जाती है, और एआई की मदद से चैट जीपीटी जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, परप्यूटेक्स यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे टूल्स एआई के आए हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में जो हमें मदद करते हैं। तो इस तरह से एआई एक बेस्ट एग्जांपल है, वो हमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर देता है, सर्च कर देता है, इवैल्यूएट कर देता है। सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो स्टैंडर्ड में हमने देखी, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस इफेक्टिवली कर देता है, और इवैल्यूएट भी इफेक्टिवली करता है, यूज कैसे करना है बताता है, और इथिकली लीगली यूज कैसे करना ये भी बताता है, लेकिन उसका यूज कैसे करना ये हम पर डिपेंड है। वो हमको सभी बातें बताई गई है, लेकिन उसका यूज कैसे करना ये ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी कि क्या, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक